Okay, fine. So now recording has started. You people can put your attendance in the chat box. I hope my screen is okay. Everybody has put the attendance in the chat box. I guess Vedant is left because of some reasons, and he might be joining anytime, right? Okay. So we have started first chapter, that is laws of motion, correct? And our next topic is acceleration. Okay, we have learned. Okay, we have learned till acceleration in the last class, and today's class we will continue from acceleration. But before that, I would like to revise few things from the last chapter. Okay, I will be revising few things from the last chapter, so that Vedant, I guess, yeah, Vedant left the class. I don't know why. So he can join till then, right? So, okay. So I want you people to turn on your mic and tell the answers, right? Today you have to turn on your mic and tell the answers. Okay, now everybody has joined. So I'm just exiting from this one account. Now we will be on the only one account, right? Good. So tell me, who is confident and who is interested to give the answer by turning on your mic? Who is comfortable? Please put your name in the chat box. आप में से कितने लोग माइक ऑन करके आंसर देना चाहते हैं या फिर दे सकते हैं? आई वांट टू चेक योर कॉन्फिडेंस. आंसर गलत हुआ तो भी चलेगा, नो इश्यूज, बट यू हैव टू स्पीक. आपको बोलना चाहिए, आपको बोलते आना चाहिए. ओके, यू डोंट हैव टू बी फियरफुल लाइक हाउ कैन वी स्पीक. दिस इज नॉट अ क्लास, नोबडी इज गोइंग टू लाफ ऑन यू. आप पे कोई हंसने नहीं वाला है, बराबर ना? So nobody is interested. Somebody has to speak. Class doesn't work like this, na? Communication has to be two way. आप भी बोलूंगा तभी जाके तो क्लास में मजा आएगा ना. I don't. आपको मतलब इतना you are not used to all these things, right? आपको इतना comfortable आप नहीं हो. But trust me, I will make you comfortable. आप थोड़ा सा आप खुद का माइक ऑन तो कीजिए ना, बाद में बाकी सारी चीजें मैं देख लूंगा. Okay? So now, when I will ask you the question, and I will take the name of a student, he or she has to turn on the mic and speak and give the answer. Okay, so first question is, what is the formula for speed? Nobody will write answer in the chat box. What is the formula for speed? Ayush, please turn on your mic and tell me what is the formula for speed. Ayush, turn on your mic. Don't be afraid. If you can listen to me, you please turn on your mic. Ayush? Speed is equal to total distance traveled upon a time required. Very good. Thank you. Now you can turn off your mic. Very good. See, that was very easy, isn't it? So speed is equals to distance by time. Now, who will tell me the formula for velocity? By turning on your mic, you have to put your name. Voluntarily put your name in the chat box. Then I will ask you to turn on your mic. If you are not putting your name voluntarily, then I will call your names. बताओ कौन कौन देना चाहता है आंसर? Velocity is equals to. Okay, Ayush again. See, Ayush has now Kadambari is also joining. Okay, Kadambari, please turn on your mic and tell us what is the formula for velocity. Yes, sir. Displacement which travel in a unit upon time. Very good. Very good. Displacement divided by time. That is nothing but our velocity, isn't it? Now I will give a chance to everybody. Now Ayush is done, Kadambari is done. Kadambari, please turn off your mic so that you won't get the echoes, right? Yeah. So let's move further. Now we have seen speed, we have seen velocity. Now I want to know what are the effects of speed and direction on velocity. Okay, what are the effects of speed and direction on velocity? I am repeating the question. See, effects
on velocity of which टाइम का और स्पीड का वेलोसिटी पे क्या क्या इफेक्ट होता है. नाउ लेट मी प्लीज टेल मी, इफ आई कीप स्पीड कांस्टेंट, इफ आई कीप डायरेक्शन सेम, so velocity will change or not? Speed is constant, distance direction is same, so velocity will change or not? There will be any effect on velocity or not? Vinit, can you tell, will there be any effect on velocity if, yeah Vinit, when I ask you to, so yeah I already asked you to turn on your mic, no issues, ठीक है, next time on कर लेना, ठीक है. So velocity will not change. Now let us suppose speed is changing and velocity is speed is changing and direction is same, then velocity will change or not? Turn on your mic minute and tell me. Okay, Vishal is again interested, very good. Vishal, please tell me. Yes, sir. Changing is there. Yeah, see, you have to answer, give answer like this. Okay, अभी मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपको कि हम क्या कर रहे हैं, स्पीड चेंज कर रहे हैं एंड डायरेक्शन इज सेम, देन वेलोसिटी विल not change. change. Velocity will change na, right? Isn't it? Velocity will change na. See, direction is same but speed is changing, so velocity will change. What is the difference between velocity and speed? So you want to know the difference between velocity and speed, right? So what is the difference between distance and displacement? Please tell me. Vedant, can you tell me? See, I'm not cross questioning you, okay? Don't feel uncomfortable. Please tell me, what is the difference between distance and displacement? This question is for Vedant, so that you will give your answer by yourself. Vedant, तुम आपका mic on करो Vedant. Very easy question. See, everybody is putting their name. Like Kadambari is interested to answer. Vishal is interested to answer. Vedant, this question is for you. Please tell, what is the difference between distance and displacement? Yeah. Of course. You turn on your mic. Sir, distance is like means it also contains, means if we are walking by road, it also contains the turns, means direction Okay. changes, and displacement is the straight line from starting point to destination. Okay, good. Yeah, so yeah, I can rectify your definition. Like, see, the actual distance or the total length traveled by the object, that can be called as a distance, right? And what is displacement? Shortest distance between starting point and end point or finishing point. Shortest distance or minimum distance between, or minimum length between starting point and ending point is called displacement. Now if you talk about speed का फॉर्मूला होता है distance by time. समझ रहे हो? मतलब तुम्हें मान लो कि तुम 1 घंटे में कितना डिस्टेंस पार कर लेते हो तो तुम्हारा स्पीड पता चलेगा. But if you talk about displacement and time, then we have to talk about velocity. Velocity is equals to displacement by time, right? So this is the difference between displacement and velocity and speed. Now let's go further. Uniform motion and non-uniform linear motion. तो ये हमने देखा है. Uniform motion क्या होता है कि equal distance in equal time period, right? Like आधे घंटे में जो अमर था और एंथनी थे, they were traveling same distance. Like Amar was traveling 20 kilometers in half hour and Anthony was traveling 14 kilometers in half hour constantly. Like see, उनका डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे चेंज हुआ ही नहीं. देखो यहाँ पे भी 20 है, 20 ही है, थ्रू आउट यहाँ पे 20 है. सी यहाँ पे भी थ्रू आउट 14 ही है, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ है 18, then 6, then 28 and then 25. That means this is non-uniform motion or non-uniform linear motion. This is uniform motion. Okay, now our next topic is acceleration. What is acceleration? See, these 3 or 4 things,
लाइक स्पीड हुआ या फिर वेलोसिटी हुआ या फिर एक्सेलरेशन हुआ, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं। कंफ्यूजिंग नहीं है बट लगता है कि स्पीड भी सेम ही है, वेलोसिटी भी सेम ही है, एक्सेलरेशन भी सेम ही है, तो फिर ये तीन तीन चीजें हमें अलग अलग क्यों पढ़ाई जा रही है? लेकिन देयर इज डिफरेंस एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, isn't it? आपको वो डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। नाउ प्लीज टेल मी, सी acceleration means what? We will first see that, and after that the question I want to ask, I will ask you. Okay, so see, first of all you have to take the pipe like this, you have to cut the pipe in the half, and you have to roll the ball through that channel. Okay, you will put the ball here and it will come down. Obviously you know what will happen. What will happen? The speed of the ball will be very minimum here, right? It will be very minimum here. It will become faster, faster, faster and faster, and at the end the speed will again reduce to zero, or maybe it will be a little it will be traveling with a little speed, right? Did you आप लोग? Yeah, good. So ऐसे में what is acceleration? See, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या देखने को मिलता है? See, observe the velocity of the ball as it rolls down along the channel. Is its velocity the same at all the points? Even if I say velocity or speed, here both the concepts are same, right? Because the direction is not changing, isn't it? It is traveling in one direction only. So I can call speed or velocity. Now, is its velocity the same at all points? So what will be your answer? Obviously not. Velocity is not same, na? It is changing. Speed is also changing, right? So observe how the velocity changes at it moves from the top through the middle and to the bottom. तो ये तो हमने सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया ही है ना. You must have all played on a slide in the park. You know that while sliding down, the velocity is less at the top. It increases in the middle and becomes zero towards the end. The rate of change of velocity is called acceleration. The rate of change of velocity. Again, see, there is difference. Not rate of change of speed. Okay, velocity. Acceleration का definition क्या रहेगा? This will be the definition of acceleration or formula for acceleration. Change in velocity divided by time. Now, what is acceleration? Okay. Now let us suppose you are riding a bike. How many of you can ride the bike? आप में से कितने लोगों को बाइक चलाना आता है? How many of you can ride the bike? No one? That's fine. Although you don't have, I guess none of. Okay, विशाल तुम्हें आता है, ठीक है. विशाल, आप तुम्हें 18 years हुए हैं? Have you completed your 18 years? If you don't have completed your 18 years, you won't be having license, right? Yeah, so I guess you don't have to ride the bike onto the roads. Okay, you can I mean you can learn bike riding but don't travel on the roads. Okay, yeah. So मैं इसलिए बोल रहा था कि आपको पता है कि बाइक का स्पीड किस तरह से बढ़ता है, मतलब या यू डोंट राइड. ओके, वेरी गुड, गुड, फाइन. सो बताओ मुझे आप सब लोग कि बाइक का स्पीड किस तरह से बढ़ाया जाता है. आपको आइडिया है? इवन इफ आपने कभी बाइक चलाया भी नहीं है, लेकिन आप सब लोगों को आइडिया तो होगा ना कि बाइक का स्पीड बढ़ता कैसे है. या फिर कोई भी गाड़ी पकड़ लीजिए, लाइक फ्रॉम क्लच. आई डोंट थिंक सो, क्लच से स्पीड नहीं बढ़ता है. बताओ, बाकी लोग बताओ. कादम्बरी, आपको पता है? लाइक आपने बस में ट्रैवल किया है, कार में ट्रैवल किया रहेगा, जीप में. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर नेम का एक पेडल रहता है ना. सो उस पेडल को जब हम गाड़ी की बात करें तो एक्सेलरेटर पेडल को हम जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है? गाड़ी का स्पीड बढ़ता है, राइट? एंड जब कम करते हैं तो क्या होता है? स्पीड कम होता है. सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट? एक्सेलरेटर. बाइक में भी जो राइट हैंड आप जहां पे पकड़ते हो ना, सो दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेटर. यू हैव टू रोल इट, right? When you roll it, the speed of bike increases. If you unroll it, then speed will decrease. Now what exactly is happening?
योर वेलोसिटी इज चेंजिंग, राइट। मान लो कि अभी आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, राइट, और आपको 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, तो आप क्या करोगे? यू विल गिव एक्सेलरेशन, राइट। तो क्या होगा, आपका जो बाइक है या फिर गाड़ी है वो 50 किलोमीटर से लेके स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर का पकड़ेगी, राइट। तो यहां पे क्या हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड चेंज हुआ है। screen is not visible. I guess it is visible for everyone. Kadambari, just check my profile in the list and pin my profile. Okay, मेरा प्रोफाइल जो है ना वो आप पिन कर लो, तो उससे कि मेरा स्क्रीन आपको ऑल द टाइम दिखेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर चेंजिंग द वेलोसिटी पर टाइम। मतलब कि जैसे ही आपने एक्सीलरेटर बढ़ाया तो वैसे डायरेक्टली जगह से ही, मतलब 50 का 70 थोड़ी ना स्पीड होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब बढ़ते हुए जाता है ना, 51, 52, 53, लाइक सो ऑन अप टू 70, करेक्ट। सो दिस इज एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। समझ रहे हो? तो अभी आप मुझे बताओ, कि मैं बाइक राइड कर रहा हूं, ओके, आई एम राइडिंग अ बाइक and I have a speed of 40 kilometers per hour and I'm not increasing the speed. What is my acceleration? What is my acceleration? I am riding the bike with the speed of 40 kilometers per hour and I am not increasing the speed. I am just putting the speed as it is, 40 kilometers per hour, and I am riding it. मतलब मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूं। तो आप लोग मुझे बताइए कि मेरा एक्सेलरेशन कितना है? वेरी इजी, अप्लाई द कंसेप्ट। सी वी डू द मिस्टेक हियर, यहीं पे गलती होती है। विनीत ने भी 40 लिखा, विशाल ने भी 40 लिखा, आयुष ने भी 40 लिखा, लेकिन जो 40 है दैट इज माय वेलोसिटी और स्पीड। एक्सेलरेशन मींस व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी। आप चेंज कितना कर रहे हो? कितना चेंज कर रहा हूं मैं? 40 था, 40 ही है, so it is 0. Acceleration is 0. Did you understand? तो आपको एक बात समझ में यहां पे क्या आई कि अगर स्पीड मान लो कुछ है, लाइक 50, 40 है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता। इट कैन बी 0, एक्सेलरेशन कैन बी 0, राइट। वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। नो, अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा डीप में सीखना चाहूं, ठीक है, तो देख लो, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड इन टाइम t इट चेंजेस टू द फाइनल वेलोसिटी v, acceleration a is equals to final velocity minus initial velocity divided by time. See this formula. So acceleration is equals to a is equals to v minus u by t. V is what? Final speed. U is what? Initial speed. Now मैंने जो आपको एग्जांपल दिया 40 किलोमीटर पर आवर का, मेरा फाइनल स्पीड क्या है? व्हाट इज फाइनल स्पीड? फाइनल स्पीड मेरा 40 है, यस और नो? 40 इज माय फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या था? जब मैंने आपको बताया कि मैं बाइक राइड कर रहा हूं, तो व्हाट वाज माय इनिशियल स्पीड? 40 ओनली ना, 40 मेरा 40 ही था ना स्पीड। मतलब आप लोगों को ये डाउट रहेगा कि सर आप थोड़ी ना कि डायरेक्टली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक शुरू करोगे। लेकिन फॉर मैं टाइम बीइंग कह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने 12:05 को मैंने बाइक चलाना शुरू किया और 12:10 पे मेरा जो स्पीड है वो 40 के आसपास जा रहा है, राइट। तो मुझे जो मेरा एक्सेलरेशन निकालना है वो 12:10 से लेके 12:15 के बीच का मुझे मेरा एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। सो दिस इज माय टाइम फ्रेम। तो 12:10 को मेरा स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, 12:15 को भी मेरा जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर ही है। तो मेरा इनिशियल स्पीड क्या हुआ? 40, क्योंकि मैंने 12:10 पे काउंट करना शुरू किया। फाइनल स्पीड क्या हुआ? 40, क्योंकि मैंने खत्म कहां पे किया? 12:15 पे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैंने वहां पे राइड खत्म कर दी, लेकिन मैं जो मेरा एक्सेलरेशन है मैं इसी टाइम फ्रेम में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मेरा टाइम कितना हुआ बताइए? अभी सेकेंड्स में टाइम कितना हुआ?
टाइम तो बता सकते हो ना आप लोग। 12:10 से लेके 12:15 के बीच में कितने सेकेंड्स का टाइम होता है? 5 मिनट यानी कितने सेकेंड्स? क्विक आंसर्स, आई नीड क्विक आंसर्स। 300 सेकेंड्स। ओके विशाल, ठीक है, मुझे पता है आपका एक जीरो टाइप करना रह गया। 300 सेकेंड्स, राइट? सो दैट विल बी, सी माय फाइनल स्पीड इज 40, इनिशियल स्पीड वाज 40 डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज 300। तो इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे बताना। व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी ऑब्वियसली 0. 40 minus 40, no, 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 240 नहीं, how 240 Vishal? See, in the denominator 40 minus 40, that is 0. If denominator is 0, then it doesn't matter what is in the if numerator is 0, then doesn't matter what is in the denominator, right? Yeah, so acceleration will be 0. Okay, now you people please tell me, you still have any doubt in velocity, speed and acceleration? अभी भी किसी को डाउट है कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, या फिर एक्सेलरेशन क्या होता है? राइट तो यही आपको लिखते आना चाहिए जब आप एग्जाम में। क्या लिखना है आपको? स्पीड जब पूछोगे, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी जब पूछेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन जब पूछेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, right? So as simple as that. Now let's move further. If the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to have accelerated motion. An object in motion can have two types of acceleration. When the object is in the rest in the beginning of its motion, what is its initial velocity? अभी बताइए मुझे, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी उस ऑब्जेक्ट की जब एक ऑब्जेक्ट at what we can say, it is at rest, it is not moving. What will be velocity of that object? What will be the velocity of a stationary object? मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। What will be the velocity? 0, right? Correct, 0 सब लोग, या What is its initial velocity? So initial velocity क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। इनिशियल यानी स्टार्टिंग की, फाइनल यानी कि जब हम मेजर करना बंद करते हैं ना टाइम फ्रेम हमारा, तो तब की, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल। When an object comes to rest at the end of its motion, what is its final velocity? Final velocity will be again 0, isn't it? Yes or no? Yes. Now, अगर हमें ये चीज पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा ऑब्वियसली। देखिए, तो मैं अभी थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करता हूं। ओके, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि उसका इनिशियल स्पीड जो है या फिर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, तो सर उसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ये तो फॉर्मूला ने हमें बता दिया, राइट? नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, सी आई एम प्लेसिंग द बॉल हियर, राइट? सी, putting the ball here, what is the initial velocity? That is 0, right? 0 will be here. What will be the end velocity? 0. Final velocity is again 0, correct? Now what is acceleration? Acceleration is equals to 0, बराबर? तो मान लीजिए कि इस बॉल को यहां से यहां तक आने के लिए कितना सेकंड्स लगा? 2 सेकंड्स लगा, राइट? 2 सेकेंड्स लग गए हैं इस बॉल को नीचे आने के लिए, पाइप थोड़ा सा बड़ा था। नो, यहां पे अगर कहीं पे बॉल है, यहां पे कहीं पे बॉल है, मान लीजिए इट इज ट्रैवलिंग, मतलब हमने ऊपर से छोड़ा है, लेकिन हम यहां पे एक्सेलरेशन चेक करना चाहते हैं। तो यहां पे ना 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के बाद में बॉल यहां पे आता है और दूसरे सेकेंड में बॉल यहां पे आ जाता है।
तो क्या इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन रहेगा वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है? इज इट पॉसिबल? अगर हम उस मोमेंट पे उसका अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहे इन द मिडल, विल इट बी जीरो और नॉन जीरो? क्वेश्चन आई होप आप समझ रहे हो। क्वेश्चन समझोगे तो आपको आंसर पता चलेगा। See why I am giving you such type of question, because it enables you to think. सोचो, acceleration will be zero or not? Non-zero. Exactly, it will be non-zero. Why it will be non-zero? Yeah, I will repeat the question. See, initial velocity is zero, final velocity is zero, but we are and that's why acceleration is zero. That is quite obvious, right? Initial velocity zero है, final velocity zero है, तो acceleration zero ही रहेगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि जब ये जो बॉल है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बीच में जब रहेगा ना, तो तब हम उसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। तो विल इट बी जीरो और नॉन जीरो? तो बाकी सब लोगों ने दिया आंसर कि नॉन जीरो, विच इज करेक्ट। नॉन जीरो ही सही है। क्यों? क्योंकि एट दिस पॉइंट दिस बॉल इज हैविंग सम वेलोसिटी, इट इज हैविंग सम वेलोसिटी एक्स वाई जेड, राइट? सो मान लीजिए कि एक्स वेलोसिटी यहां पे है, राइट? सो मैं यहां पे लिख देता हूं कि the ball is having x velocity, so that is its final velocity। देखिए, मैं 1 सेकंड की जब बात कर रहा हूं ना, तो मैं फाइनल वेलोसिटी क्या लूंगा? यही की लूंगा ना, क्योंकि मैं इसके आगे का मेजर नहीं कर रहा हूं। सो फाइनल वेलोसिटी इज x एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है बताइए मुझे? 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम फ्रेम कितना ले रहे हैं हम, कितने टाइम के लिए हम मेजर कर रहे हैं? 1 सेकंड के लिए, नो 2 सेकंड के लिए नहीं, 2 सेकंड तो कंप्लीट पाइप के लिए है ना, हम आधे पाइप में जब बॉल है तो तब की बात करें ना। सी, यहां पे थोड़ी ना 2 सेकंड हुए हैं, यहां पे तो 1 ही सेकंड है। या वी आर टेकिंग टाइम फ्रेम ऑफ 1 सेकंड, सो इट विल बी x minus 0 divided by 1, so acceleration will be equals to x minus 0 is x divided by 1 is x, acceleration will be x। ओके, तो इस तरीके से देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको स्टार्टिंग की वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दी, दोनों भी जीरो है, तो आप एज्यूम कर लो कि एक्सेलरेशन हर जगह पे जीरो ही रहेगा। इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। तो आप मुझे बताइए, कोई भी उसमें आप में से कोई भी एक माइक ऑन करने के लिए आपका नाम लिखे चैट बॉक्स में, और एक्सेलरेशन का कंसेप्ट जो है एकदम सिंपल वर्ड्स में मुझे आप लोग बताइए। Who is interested? Very simple words. Answer can be of 5 to 6 words only. ट्राई करो, मैं आपको अश्योरिटी देता हूं, अगर आप में से जो कोई भी अभी आप माइक ऑन करके बोलोगे ना, तो आप में से वो स्टूडेंट उस डेफिनेशन को, एक्सेलरेशन को कभी भी नहीं भूलेगा, बिकॉज he has given the answer, he or she has given the answer in the classroom. He will never forget that definition, never, I said never, not till this examination। तो बताओ, who is interested to tell the definition, simplest definition of acceleration? What is it? हम इसका किस तरह से अनुमान लगाते हैं? एक्सेलरेशन क्या है? फॉर्मूला ही बता दो। You can tell the formula as well. Kadambari, very good, go ahead। Yes, sir. Go ahead, Kadambari। Yeah. Change in velocity divided by time. Exactly, change in velocity divided by time, और final velocity minus initial velocity by time। Okay, very good। चलो, now अभी एक्सेलरेशन तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। now पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। अभी आप लोग मुझे बताइए, कैन इट बी पॉजिटिव? या ऑब्वियसली इट कैन बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है। कैन इट बी नेगेटिव एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? मतलब किताब में दिया है तो इसकी वजह से नहीं, आप सोच के बताइए कि कैन इट बी नेगेटिव एक्सेलरेशन? नहीं हो सकता। ओके फाइन, जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है, वेरी गुड।
तो आप लोगों का कहना है कि सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, नाउ लेट अस थिंक कि अभी ना मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूं एट 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, लिख लीजिए, माई इनिशियल स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। आई एम अगेन रिपीटिंग, इनिशियल स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। पर लेकिन क्या होता है ना, अचानक से ना थोड़ा सा ट्रैफिक आ जाता है, सो आई डिक्रीज माई स्पीड। आई डिक्रीज माई स्पीड टू 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, 20 किलोमीटर पर आवर। और ये जो स्पीड मैंने चेंज की है, ये मैंने चेंज की है 40 सेकेंड में। कितने सेकंड्स में? 40 सेकंड में। मेरी पहले इनिशियल स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, अभी मेरी फाइनल स्पीड हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस ऑल हैपेंड इन 40 सेकंड्स। नाउ यू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। सी, माय इनिशियल स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड जो है मेरी 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, क्योंकि मैंने स्पीड कम कर दी, एंड दैट ऑल थिंग्स हैपेंड इन 40 सेकेंड्स। मतलब जो मेरा टाइम फ्रेम था ना वो 40 सेकेंड्स का है। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? चलिए, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो मैं ही बता देता हूं। ओके, सी, मैंने क्या कहा? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय u, that is 60 kilometers per hour, right? Final velocity, that is represented by v, which is 20 kilometers per hour. टाइम मैंने कितना बताया? 40 seconds बताया। Now apply the formula of acceleration. Acceleration का formula होता है, what is the formula of acceleration? v minus u divided by t, which is equals to v is what? 20 minus 60 divided by 40. So what it will be? 20 minus 60 minus 40 by 40. So it will be -1. अभी एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आ गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया ना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ सकता है या फिर नहीं? अभी आप आंसर बताइए। आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है। जब हम स्पीड कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं, बराबर ना? हम डी एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड इट कैन बी जीरो ऑल्सो, राइट? आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस। अभी इसमें किसी को भी डाउट नहीं चाहिए, राइट? एनीवन हैव एनी डाउट? Please ask now. No doubts, we will move further. No doubts, very good. Chalo, let's move further. Let me just wipe this out all. This is just for your understanding purpose. So मैं paragraph पढ़ लेता हूँ. Positive and negative acceleration. An object can have positive or negative acceleration. When the velocity of an object increases, the acceleration is positive. In this case, the acceleration is in the direction of velocity. When the velocity of an object decreases with time, it has negative acceleration. Negative acceleration is also called deceleration. Its direction is opposite to the direction of velocity. If the velocity of the object does not change with time, it has zero acceleration. तो हमने तीनों जो चीजें हैं, तीनों चीजों को हमने एग्जाम्पल के साथ में सीखा है कि किस तरह से एक्सेलरेशन बढ़ता है, किस तरह से पॉजिटिव होता है, किस तरह से नेगेटिव होता है, और किस तरह से वो जीरो हो सकता है, राइट? आई नो वी आर गोइंग लिटिल बिट स्लो, बट दीज आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ओके, देखिए, ये जो एक्सेलरेशन है, ये स्पीड है, वेलोसिटी है, दिस इज ABC फॉर यू। मतलब A फॉर एप्पल जो हम पढ़ते हैं ना नर्सरी में वगैरह, तो दिस इज दैट फॉर यू। मतलब जब आप 11th 12th में जाओगे, 10th में भी जाओगे, so nobody is going to teach you what is acceleration and what is velocity. You have to solve a lot of examples on the acceleration and velocity and speed, and then you get confused. What is this? What is this? What is that? What is difference between this? So अगर वो सब नहीं करना है तो आज क्या करना है हमें 9th क्लास में? हमें जो हमारा फंडामेंटल है, बेसिक है, वही हमें सीखना है।
दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्लो. ओके, तो मैं आपको एक चीज लिख के दे सकता हूँ कि ये जो आपका वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, ये आपका ना 10th में पीछा छोड़ेंगे, ना 11th में, ना 12th में, ना ही डिग्री में. ठीक है, ये आपका मतलब आपका पीछा करते ही रहेंगे. लेकिन अगर आपका इसका फंडामेंटल क्लियर है ना, बेसिक अगर आपका इसका क्लियर है, so you will solve any kind of a question. So that is how it is important, that is why it is important, and that's why I'm taking this much of time. I hope you understand and you people are not getting bored, right? आप में से कोई ऐसा है जो बोर हो रहा है, जिसको क्लास में थोड़ा सा सर स्लो हो रहा है? नहीं, गुड, ठीक है. ओके, प्रार्थना, आई गेस यू हैव joined late. So first of all, put your attendance in the chat box. And second thing, Prarthana, I would like to suggest you that please don't be late. Okay, late नहीं होना है, because देखिए ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें आपका ही नुकसान है. लाइक आप YouTube पे ये वीडियो देख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप इतना मतलब पसंद से जाके देखते नहीं हो ना. तो लाइव क्लास में जब आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो, जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ, मैंने आज सबको बोलने के लिए भी बोला माइक ऑन करके, तो ये सब चीजें आप मिस करते हो ना लाइव क्लास में. ओके, मेक श्योर एवरी वन ऑफ यू, आप सब लोग में से, मतलब सबने टाइम पे ज्वाइन करना है. ओके, एंड यू हैव टू अटेंड द क्लास थ्रू आउट. एंड इफ इन केस कोई नेटवर्क इशू वगैरह रहता है, सो अटेंड द क्लास ऑन द यूट्यूब पे देख लेना है, क्लास मिस नहीं करना है. इट ओनली टेक्स 30 minutes टू लिसन टू द क्लास ऑन यूट्यूब, बिकॉज आप 2x की स्पीड से चला सकते हो, दुगनी स्पीड से. ओके, सो यू कैन अटेंड द क्लास देयर. सो डोंट मिस क्लासेस. नाउ लेट्स गो फर्दर. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अभी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है फॉर यूनिफॉर्म मोशन. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, because all of you know that. The following table shows the distance covered by a car in a fixed time intervals. Draw a graph of distance against time, taking time along x-axis and distance along y-axis. So let me just zoom this in for you people so that we will be able to draw the graph properly. Okay. So I guess it is much clear view. Okay. So now I'm not coming back to the chat box just because I have done this in a full screen so that we can just discuss the things. Okay. Now see, here you can see. Okay, sorry. Yeah. Here it is x-axis. Horizontal axis is x-axis, right? You all know that. This is x-axis. This is y-axis. Y-axis. So हमने क्या किया, देखो यहाँ पे x एक्सिस पे हमने टाइम लिया है इन सेकेंड्स, एंड y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, डिस्टेंस इन मीटर्स लिया है. नाउ वी विल ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है आपको तो पता है. देखिए, टाइम 0 है तो डिस्टेंस कितना है, 0 ही है. तो टाइम के स्केल पे हमने 0 को मार्क कर दिया, डिस्टेंस की स्केल पे भी हमने किसको मार्क कर दिया, 0 को मार्क कर दिया. यहाँ पे देख लीजिए. नाउ टाइम इज 10 सेकेंड्स, डिस्टेंस इज 15. नाउ टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 15 है. तो यहाँ पे कहीं पे 10 रहेगा एंड यहाँ पे 15 रहेगा. सो इट विल बी समवॉट हियर, राइट. 15 विल बी हियर. नाउ मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया. अभी टाइम है 20 सेकेंड्स, डिस्टेंस है 30 मीटर्स. नाउ 20 सेकेंड्स टाइम पे 30 मीटर्स हमें देखना है, राइट. सो 30 मीटर्स कहीं पे तो यहां पे रहेगा, राइट. देखिए, देख लीजिए, ये 20 और 40 के बीच में 30 रहेगा. नाउ 30 मीटर्स की जब हम बात करते हैं तो 30 सेकेंड्स पे ना जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर्स है, जो कि यहां पे रहेगा. अगर मैं गलत ड्रॉ कर रहा हूं तो आप लोग मुझे बताना है. 40 जो टाइम सेकेंड है, 40 पे हमारा डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर्स रहता है. तो 40 पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी 60 पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो मैं थोड़ा सा लंबा ले रहा हूं, तो डायरेक्टली जाएगा ये कहां पे, 90 पे. तो 60 पे क्या आएगा, 90. ये यहाँ पे, राइट. तो 80 तो यहाँ पे दिया ही नहीं है. तो अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स. तो देखते हैं कि किस तरह से हमें पॉइंट्स ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ सी, मैंने यहां से शुरू कर दिया. Now can you see this line is intersecting, or it consists of all the points.
नॉट अंडरस्टूड, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट इट। विशाल चिंता मत करो। देखो पहली बात तो ये देख लो कि ये जो लाइन है ये सारे पॉइंट्स की ओर से जा रही है ना, जा रही है, एग्जैक्टली जा रही है। थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट गोइंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स। ओके, तो विशाल इसमें देखो हमें क्या करना है ना, हमें टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो टाइम जो है वो हमें एक्स एक्सिस पे दिया है और डिस्टेंस जो है हमें वाई एक्सिस पे दिया है। तो इस तरीके से हमें पॉइंट्स मार्क करने होते हैं। आई होप आप लोगों ने ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये सीखा है। विशाल आपको तो पता है ना, या गुड। सो इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ किया मतलब पॉइंट्स मार्क कर लिए पहले और उन पॉइंट्स को हमने एक लाइन से जोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, राइट। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? See, the conclusion is in the blue box. An object in uniform motion covers equal distances in equal time intervals. Thus, the graph between distance and time is straight line. It is straight line, right? जो कि हमने प्रूव भी किया है। ओके, सो जब यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करते हैं तो उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन मीन्स equal distances in equal amount of time intervals, that is uniform distance, the uniform motion. Now we will draw the graph for non uniform motion और देखते हैं कि इसका भी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है या फिर नहीं आता है। ओके, तो देखो मैं फिर से इसे ड्रॉ करता हूं। सो विशाल तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा मतलब आप ध्यान दो, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था ना लास्ट क्लास में, लास्ट इसमें, राइट। सो यहाँ पे तो इन्होंने एक्स एक्सिस भी ड्रॉ नहीं किया है, वाई एक्सिस भी ड्रॉ नहीं किया है, तो कैसे करेंगे हम? ठीक है करते हैं, चलो। तो ये कर लिया मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ, ओके, ये कर लिया मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ। नाउ मान लो, चलिए तो यहाँ पे ना हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। पॉइंट्स मार्क करेंगे हम ग्रीन कलर से, राइट। सो टाइम जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया है एक्स एक्सिस पे। So this is my x axis. I hope it is visible. This is time on the x axis. Okay. And this is y axis. Y axis पे क्या ले रहे हैं हम? Y axis पे हम ले रहे हैं distance. Right? Now, ये मार्किंग करना पड़ेगा हमें। ये 0 तो यहीं पे रहेगा दोनों के लिए भी। इसे हम कंसिडर करते हैं 5, 10. Is it visible or not? First of all, let me know. The green color is visible or not? If not, then I will use red. Yes, it is visible. चलो ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर लेता हूं तो ताकि आपको वो अच्छे से दिखाई दे। I'll use the black color. So ये 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 10 लिख दिया। Now 15, 20, 25, 30, 35 and 40 देख लीजिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 40 है। Now y एक्सिस पे अगर मैं करूंगा तो 10-10 का लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कहीं पे 10 रहेगा, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 एंड 50 मीटर्स तक मैंने यहाँ पे ले लिया डिस्टेंस मीटर्स में। ओके, नाउ देखिए 0 पे तो क्या है, थोड़ा सा रेड कलर में लिखता हूँ, पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। टाइम जब 0 है तो डिस्टेंस कितना है? 0 ही है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। टाइम जब 5 सेकेंड्स है, 5 सेकेंड्स के लिए डिस्टेंस कितना है? 7 मीटर है, तो 7 यहां कहीं पे आएगा, बराबर। नाउ 10 के लिए जो है वो डिस्टेंस कितना है? 12 है, तो 10 के लिए ये 10 के थोड़ा सा अब यहां पे आएगा। तो 15 के लिए कितना आएगा? 20 आएगा। 15 के लिए मैंने यहाँ पे इसे मार्क कर दिया, 15 के लिए 20। नाउ 20 के लिए 30। सो देखिए 20 के लिए कितना है? 30 है। 20 के लिए 30 आया। 25 के लिए 41 है। 25 के लिए 41 कुछ यहां पे। नो 30 के लिए है 50, तो 30 के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे 50 के लिए। ओके, तो आप लोग देख लेना थोड़ा सा जब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, नाउ सी, इज दिस अ स्ट्रेट लाइन? इवन इफ आई ड्रॉ लाइक सी, मैंने तो ये फ्री हैंडली ड्रॉ किया है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन का यूज करके भी इसे ड्रॉ करना चाहता हूं
तब भी आप मुझे बताना कि क्या जब मैं 0 से शुरू करता हूं, लास्ट का पॉइंट जब मैं टच करता हूं, तो क्या ये लाइन स्ट्रेट लाइन है? देख लीजिए, ये जो सारे पॉइंट्स है ना यहाँ पे, ये पॉइंट्स तो लाइन के बाहर ही है ना। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट कितने बाहर है? राइट, not a straight line. Yeah, we have 60 meters, Vinit, you are right, we have 60 meters, but actually problem is no, हमारे पास ग्राफ छोटा है, तो इसलिए हमने 50 meters के लिए ड्रॉ कर लिया. ओके ओके, सो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो हम ये ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं, अभी सब लोग मुझे बताइए, जो मैंने पहले भी ग्राफ ड्रॉ किया, ये भी ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये हम किस चीज के, मतलब क्या वर्सेस क्या का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? Which two parameters we are taking into the consideration? Which बताइए मुझे, क्या वर्सेस क्या, मतलब जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? डिस्टेंस वर्सेस टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड टाइम, बराबर. मतलब कि पहले 5 सेकंड में कितना मीटर गया, दूसरे 5 सेकंड में कितना मीटर गया, सो लाइक दिस. ओके, तो दोनों ग्राफ ऐसे ही थे. तो हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या कहता है? यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन कहता है कि द ऑब्जेक्ट विल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल्स. बराबर, मतलब अगर वो पहले 5 सेकंड में अगर 20 मीटर जाता है, तो वो दूसरे 5 सेकंड में भी 20 मीटर ही जाएगा, तीसरे 5 सेकंड में भी वो 20 मीटर ही जाएगा. सो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, बताइए मुझे. यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो हाउ इट विल बी? किस तरह का रहेगा? इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन रहता है. और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है. राइट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है. सो दीज वेर द टू ग्राफ्स. आफ्टर दैट लेट अस मूव फर्दर, हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन. चलिए, तो नेक्स्ट क्या है? वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो देखिए, ये थोड़ा सा पढ़ने में ही मुश्किल लगता है कि क्या सर क्या दिया है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लेकिन अगर आप इसे 1 बाय 1 पढ़ोगे ना, थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़ों में पढ़ोगे ना, तो आपको इजी लगेगा कि सर ये तो इजी है, इसमें सिर्फ नाम बड़ा है इसका, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. ओके, नाउ सी हाउ. वेलोसिटी टाइम, ये हमें पता है. ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज नथिंग बट इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, सिमिलर, राइट. So a train is moving with a uniform velocity of 60 km/h for 5 hours. The velocity time graph for this uniform motion is. तो देखो, एक ट्रेन है जो कि 60 km/h की स्पीड से दौड़ रही है, कितने घंटों के लिए? 5 आवर्स के लिए, बराबर. तो इसकी वेलोसिटी कैसी है? देखिए, स्ट्रेट लाइन है, मतलब यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. यूनिफॉर्म मींस सेम, इट इज नॉट चेंजिंग. ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जो कि 60 km/h है, जो कि यहाँ पे आप इस लाइन से देख भी सकते हो. ओके, नाउ नीचे का जो बार है, एक्स बार या फिर एक्स जो है, यहाँ पे क्या दिया है? टाइम इन आवर्स, मतलब पहला आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर. तो इसमें ये डिस्टेंस नहीं दिखाया है यहाँ पे. दिस ग्राफ इज ऑफ नॉट डिस्टेंस. This graph is of not distance versus time. This is velocity versus time. तो वेलोसिटी जो है वो पहला घंटे में भी 60 km/h ही थी, सेकेंड आवर में भी 60 km/h ही थी, थर्ड में भी सेम, फोर्थ में भी सेम, फिफ्थ में भी सेम, मतलब सिक्स्थ में भी इवन सेम ही है. तो सभी जगह पे यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो सेम ही है. दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग कि ये ग्राफ इस तरह का क्यों है? Yes, good. चलो, तो now you give me 2 questions, answer of these questions, and then we will stop for today. With the help of the graph, how will you determine the distance covered by the train between 2 and 4 hours? तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि इस ट्रेन ने between 2 hours to 4 hours
इसके बीच में इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? बताइए। थोड़ा सा सोचिए, 1 मिनट लगने दीजिए, 30 सेकेंड्स लगने दीजिए, लेकिन सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि अभी मुझे नहीं आता सर दे देंगे आंसर, ऐसा नहीं। हाउ मच डिस्टेंस आपके पास फॉर्मूला है या? ओके, विनीत ने तो निकाल भी लिया आंसर। आपके पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपके पास स्पीड तो है ना, स्पीड कितना है? स्पीड हो वेलोसिटी हो सेम ही है, इस केस में सेम ही है, स्पीड 60 है, राइट। देखो आपके पास ये फॉर्मूला तो रहेगा ना, मुझे लिखने दीजिए यहाँ पे तो तब जाके आपको समझ में आएगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड तो हमारे पास है, कितना है? 60 है। डिस्टेंस पता नहीं, डिस्टेंस निकालना है तो मैं यहाँ पे डी लिख देता हूं। टाइम कितना है? 2 आवर्स है, राइट। तो ये जो 2 आवर्स है ये यहाँ पे चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 120 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। अभी आप मुझे बताइए किस किस को समझ में नहीं आया कि 120 डिस्टेंस क्यों है? सबको समझ में आया? यस या। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू अगेन, लेट मी जस्ट वाइप दिस आउट। Is there a relation between the distance covered by the train between 2 and 4 hours and the area of a particular quadrangle in the graph? What is the acceleration of the train? The first question is, what is the acceleration of the train? First and the easiest question, what is the acceleration of the train between 2 to 4 hours? 2 आवर से लेके 4 आवर के बीच में ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है? भूल गए? आज ही सीखा हमने ये। फॉर्मूला बता दो कम से कम, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? विनीत कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन 1 रहेगा। आई डोंट एग्री विथ यू विनीत। एक बात को समझिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो एट द स्टार्ट ऑफ 2 आवर्स वेलोसिटी क्या है? यहां पे वेलोसिटी क्या है मुझे बताइए? 2 पे वेलोसिटी क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर है। 4 पे वेलोसिटी क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। 4 पे वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। विशाल 120 जो है वो डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी? इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी? नो चेंज इन वेलोसिटी। So what will be acceleration? अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा कि सर अगर इस ट्रेन का मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन तो सर 0 रहना चाहिए ना। दैट शुड कम फ्रॉम यू। यू अंडरस्टैंड? सी क्या है ना, कभी कभी मतलब मैं मेरी बात बताता हूँ खुद की। ओके, वी हैव सम इंस्टिंक्ट्स लाइक, आप कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है कि शायद ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि सही है या फिर गलत है, और बाद में पता चलता है कि आंसर तो मैंने जो सोचा था वही है, काश मैं ये आंसर दे देता हूँ। तो आई होप आप में से भी कई लोगों को ऐसा होता होगा कि सर मैंने सोच लिया था कि शायद एक्सेलरेशन 0 रहेगा, लेकिन मुझे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि बराबर है या फिर गलत है। ऐसा नहीं करना है। सी आपको लगता है ना, सी यू हैव टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट। अगर आपको लगता है ना कि आंसर रहेगा, इवन इफ इट इज रॉन्ग, इवन इफ इट इज रॉन्ग, आपको वो आंसर बताना है। आपके यहाँ पे मार्क्स तो कटने नहीं वाले हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में आपको जो आंसर पता है वही लिखने होते हैं,
जब आप क्लास की बात करते हो या फिर स्कूल की बात करते हो, तो आपको जो आपके चांसेस है, लाइक आपको ऐसा लगता है कि ये आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उसे देना है। यू हैव टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट। ना ही सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में नहीं, आप आगे भी जाओगे ना, तो कई बार ऐसा होता है आपको लाइफ में भी ना, ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे करनी चाहिए, देन अगेन यू हैव टू आस्क वन क्वेश्चन, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। अगर राइट है और आपको लगता है कि ये करनी चाहिए, सो यू हैव टू गो फॉर इट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ बुरी चीज है, गलत चीज है, आपको लगता है करना चाहिए तो कर ले रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो इसी तरह से जब कभी भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, पर्टिकुलरली मेरे क्लास में, साइंस का हो, मैथमेटिक्स का हो, आपके मन में पहला इंस्टिंक्ट जो आता है ना, कि पहला आंसर जो आता है कि सर मुझे लगता है ये आंसर है, so you have to immediately give that answer without caring about whether this answer is right or wrong. And I'm 100% sure आपका 10 में से ना 8 बार आपका आंसर सही निकलेगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है ना, वो इसी तरीके से काम करता है कि हमारा पहला जो इंस्टिंक्ट रहता है वो सही ही रहता है। ओके, तो आप ऑनेस्टली सब लोग मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा था कि एक्सेलरेशन 0 है इसका? सबको ऐसा लगा होगा आई गेस, बराबर ना? लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि हमें तो पता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन तो 0 ही रहेगा। सो यू हैव टू गिव दैट आंसर, यू हैव टू लेट इट कम आउट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लास्ट 3 minutes I'm gonna cover is there any relation between distance traveled and the area of quadrangle? तो मैं यहाँ पे quadrangle ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि हम किस quadrangle की बात कर रहे हैं। We are talking about this. ओके, से 2 से लेके हम 2 से लेके 4 तक की बात करें ना, 2 आवर से लेके 4 आवर तक, सॉरी आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वाड्रेंगल की, तो इसका जो नीचे का साइड है वो कितना है? 2 है, सॉरी ये तो एंगल ही आ रहा है। इसका नीचे का साइड कितना है? 2 है, और ये साइड कितना है इसका? 60 है। It is nothing but the rectangle. What will be the area of this rectangle? What will be the area of this rectangle? 60 into 2, L into B, length into breadth. That is the area of the rectangle, right? So 120 रहेगा। तो देखिए डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर पर आवर ही है, और जो इस क्वाड्रेंगल का एरिया है या फिर रेक्टेंगल का एरिया है, ये भी 120 ही है। सो देयर इज रिलेशन, राइट? चलो ठीक है, तो ये सब हमने सीख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल के लिए, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नाम बड़ा है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं रहेगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस अभी आ गया है, राइट? चलो ठीक है, तो अभी 8 बज रहे हैं, इट इज एग्जैक्टली 1 आवर एंड वी हैव टू स्टॉप हियर। चलो स्टूडेंट्स, बाय बाय, यू आर फ्री टू लीव द क्लास। बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, या बाय। Yeah, bye everyone, have a nice evening. Bye. Chalo, Vineet, Vishal, Kadambari, please leave the group so that I can close the class. Kadambari, leave the class. Kadambari, please leave the class now.